Hello friends, my name is Tavinder Singh, teacher at Jagran Public School, Lucknow. Today we are going to study topic income determination and multiplier part second. Why? Because we have already studied a video in which we have discussed about aggregate demand, aggregate supply, consumption function and saving function concepts. If you have not seen that video, please go to that video, then see that video, then come to this video to get a better understanding. So let's start. Topics covered in this video are full employment equilibrium, investment multiplier, working of investment multiplier. Let's give you a brief of aggregate demand and its components. So aggregate demand is the total demand for the goods and services in an economy by all the consumers in the economy. So if we are talking about aggregate, that means total demand. Aggregate means total demand, ठीक है. तो aggregate is equal to total demand, ठीक है. So if we are talking about aggregate demand, that means जितने भी consumers market में हैं, वो जितने भी goods and services की डिमांड कर रहे हैं, अगर हम उन सबका टोटल कर देंगे तो हमारा एग्रीगेट डिमांड आ जाएगा. सो बेसिकली दो तरीके की एग्रीगेट डिमांड होती है, कंजम्पशन डिमांड एंड इन्वेस्टमेंट डिमांड. कंजम्पशन डिमांड, द मनी विच वी स्पेंड ऑन द कंज्यूमर गुड्स दैट इज यूज्ड फॉर कंजम्पशन पर्पसेस दैट सेटिस्फाई आवर वांट्स. एंड सेकंड इज इन्वेस्टमेंट डिमांड, द मनी विच वी यूज ऑन द इन्वेस्टमेंट पर्पसेस on creation of assets that helps to generate some amount of income for us. So basically there are two types of demand, consumption demand and investment demand. Now the major components of aggregate demand are household consumption, which is done by the household people like you, I and us. So household वाले जो खर्चा करते हैं उसे हम household consumption कहते हैं. ऐसे ही गवर्नमेंट भी कुछ एक्सपेंडिचर करती है. वो क्या करती है? वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए लाइक स्टाफ को सैलरी देना या उसके जो भी सामान उसको लग रहा है लाइक पेपर वर्क के लिए पेपर्स लग रहे हैं, इंक लग रही है, कुरियर चार्जेस लग रहे हैं, दैट इज गवर्नमेंट कंजम्पशन, राइट. एंड द थर्ड इज पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट. पब्लिक इन्वेस्टमेंट मीन गवर्नमेंट जो पैसा इन्वेस्ट करती है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मीन जब हम लोग किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं उसे हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कहते हैं. द लास्ट इज एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स. नेट एक्सपोर्ट्स मीन्स फॉरेन डिमांड, जो भी हम आउटसाइड मतलब आउटसाइड द कंट्री किसी को सप्लाई कर रहे हैं, वो भी एक तरह की डिमांड है कि वो डिमांड कर रहे हैं तभी तो हम सप्लाई कर रहे हैं. तो बेसिकली देयर आर फोर कॉन्सेप्ट्स, फोर कंपोनेंट्स ऑफ दिस एग्रीगेट डिमांड, दैट इज हाउसहोल्ड कंजम्पशन, गवर्नमेंट कंजम्पशन, पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट. बट here in this chapter we are going to take a two sector model, that is why the formula for AD will here be C plus I only. Government consumption and export and imports will not be included in this aggregate demand in this chapter. Fine. Now what is aggregate supply? Supply, who do the supply? Producer. So the supply of all the goods and services by all the producers in the economy is known as aggregate supply. That is the total supply of all the goods and services. Means जब सारे goods and services की सप्लाई सारे producers करेंगे, उनकी सप्लाई को टोटल करके हम एग्रीगेट सप्लाई बनाएंगे, ठीक है. सो बेसिकली एग्रीगेट सप्लाई का यहाँ फॉर्मूला होता है कंजम्पशन प्लस सेविंग. जो भी हमने गुड्स बाहर भेजा है वो कंज्यूम हो गया है और जो अभी प्रोड्यूसर के पास एज अ स्टॉक रखा हुआ है वो आपका सेविंग्स है. सो एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला क्या हो गया? कंजम्पशन प्लस सेविंग्स. ऐसे ही इनकम का भी सेम फॉर्मूला होता है, आप नीचे देख रहे होंगे y इज इक्वल टू सी प्लस एस. दैट इज y यानी कि इनकम का कुछ पार्ट हम कंज्यूम कर लेते हैं तो वो कंजम्पशन कहलाता है, जो बच जाता है वो हमारा सेविंग्स कहलाता है. Now let's learn about some types of employment which is necessary to understand in this topic. So what is involuntary unemployment? Involuntary मतलब अपनी मर्जी से अनएम्प्लॉयड नहीं है, वो उसको काम ही नहीं मिल रहा है. मतलब मीन्स the person is willing to work but he is not getting the wage or he is getting failed to get the employment. उसको काम ही नहीं मिल रहा है काम करने के लिए, वो किसी भी वेज रेट पे काम करने के लिए तैयार है बट काम ही नहीं मिल रहा है, तो ये इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट होगी. इसके बारे में गवर्नमेंट कंसर्न होगी क्योंकि वो काम करना चाहता है, उसको काम नहीं मिल रहा. वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? अपनी मर्जी से अनएम्प्लॉयड है, मींस ही इज गेटिंग द जॉब बट मे बी ड्यू टू सम प्रमोशनल स्टेटस, ड्यू टू फिजिकल एनवायरनमेंट, मे बी वेज रेट, वो काम नहीं करना चाहता, तो उसको सूट नहीं कर रही इसलिए वो काम नहीं कर रहा, लेकिन काम तो मिल रहा है ना. गवर्नमेंट ऐसे पीपल के बारे में कंसर्न नहीं होती है ज्यादातर.
फिर साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट होती है जो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की वजह से मार्केट में फ्लक्चुएशंस की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है। जैसे मान लीजिए कि दिवाली सीजन है, दिवाली सीजन में क्या होता है, कस्टमर्स की डिमांड बढ़ती है, तो वी नीड मोर वर्कर्स, राइट। सो एट दैट टाइम द एम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस। बट कुछ सीजन्स ऐसे आते हैं, कुछ टाइम ऐसा आता है जहां पे डिमांड एकदम से कस्टमर्स की कम हो जाती है, तो वी डोंट नीड मोर वर्कर्स। दैट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज नोन एज cyclical unemployment and the last is technological unemployment, that is due to technology जो लोग unemployed हुए, like advanced technology आ गई, वो पिछली टेक्नोलॉजी से पे काम कर रहे थे, उनको नई टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता है, वो कोप अप नहीं कर पाए उस चीज से, तो वो टेक्नोलॉजी की वजह से अनएम्प्लॉयड हो गए। लाइक यू कैन से बैंक में पहले लोग बुक्स में रिकॉर्डिंग करते थे, नोट करके एक डायरी या रजिस्टर होता था उसमें मेंटेन करते थे, राइट। अब क्या आया, कंप्यूटर आया, तो जो पुराने लोग थे जिन्होंने कंप्यूटर नहीं सीखा था वो कुछ तो उसमें से ट्रेंड हो गए, कुछ नहीं ट्रेंड हो पाए, तो वो टेक्नोलॉजी की वजह से अनएम्प्लॉयड हुए। लाइक ये भी कह सकते हैं जैसे एटीएम मशीन आ गई, एटीएम मशीन क्या है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अब उसका काम क्या है, कैश विड्रॉ करना, राइट। अब एक पर्सन होता था बैंक में, हम जाते थे उससे कैश विड्रॉ करते थे, 4-5 पर्सन रखे जाते थे क्योंकि कस्टमर्स ज्यादा होते थे। एटीएम मशीन आने की वजह से अब आप देखते होंगे कि 2 ही 3 किसी बैंक में आपको एम्प्लॉय मिलेंगे जो कैश विड्रॉल और एक्सेप्टेंस का काम करते हैं, ठीक है। तो दैट इज अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी जो अनएम्प्लॉयड हुए। यहाँ पे हमें 2 अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में कंसर्न करना है, वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी। बेसिकली इनवॉलंटरी मतलब गवर्नमेंट उस अनएम्प्लॉयड पीपल के बारे में कंसर्न है जो काम करना चाहता है किसी भी वेज रेट पे, बट उसको काम नहीं मिल रहा है। नाउ व्हाट इज फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम? So it's a situation where all the resources are fully employed and there is no involuntary unemployment exists. तो ये एक सिचुएशन है जहां पे सारी रिसोर्सेज फुली एम्प्लॉयड, मतलब वी टॉकिंग अबाउट ह्यूमन रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स, फिजिकल रिसोर्स, ऑल टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज शुड बी फुली एम्प्लॉयड एंड देयर इज नो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट। मतलब गवर्नमेंट चाहती है कि फुल एम्प्लॉयमेंट तब होगा जब कोई भी ऐसा पीपल ना बच जाए जिसको काम करना है बट वो काम उसको नहीं मिल रहा है, क्योंकि वॉलंटरी तो हमेशा एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे। ऐसे लोग तो हमेशा मिलेंगे जिनको काम मिल रहा होगा लेकिन वो सैलरी वगैरह की वजह से काम करना नहीं चाह रहे, तो उनके बारे में कंसर्न नहीं कर सकते। आपको पहले उन लोगों के बारे में सोचना है जो किसी भी वेज रेट पे काम करना चाह रहे हैं। तो फुल एम्प्लॉयमेंट कब होगा? जब सारी रिसोर्सेज फुली एम्प्लॉयड होंगी और कोई भी इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगी। सो बेसिकली देयर आर 2 अप्रोचेस टू फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। एक तो आपका एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच है एंड सेकेंड इज सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। तो 2 अप्रोचेस के थ्रू हम फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम को स्टडी करेंगे। नाउ व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई? वी हैव ऑलरेडी स्टडीड एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। टोटल डिमांड ऑफ ऑल द कंज्यूमर्स इन द इकोनॉमी is known as aggregate demand and total supply of all the producers of all the goods and services in the economy is known as aggregate supply. तो जहां पे भी बेटा कंडीशन क्या होगी फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की इस अप्रोच के अकॉर्डिंग, जहां पे भी एडी और एएस की वैल्यू इक्वल हो जाएगी वो हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होगा, राइट। सो कंडीशन क्या है? व्हेन एडी इज इक्वल टू एएस। इसको समझने के लिए हम पहले एक शेड्यूल समझते हैं। देखो ये यूनिवर्सल शेड्यूल है, अगर आपको ये समझ में आ गया तो पूरे चैप्टर में आप ये शेड्यूल अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ ये एक शेड्यूल आपको याद करना है, उसके बाद आप सारे शेड्यूल्स को मतलब बनाने की जरूरत नहीं, आप यही एक शेड्यूल को फॉलो करके सारे डायग्राम्स बना सकते हैं। तो हम बात करते हैं, पहले हमारा Y स्टैंड्स फॉर इनकम, I स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट, C स्टैंड्स फॉर कंजम्पशन, S स्टैंड्स फॉर सेविंग्स, AD स्टैंड्स फॉर एग्रीगेट डिमांड। इसका फॉर्मूला हम लोग क्लोज इकोनॉमी लेके चल रहे हैं, हमने पहले ही बताया था। तो हम सिर्फ 2 सेक्टर मॉडल की कंसिडर करेंगे, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एंड AS इज इक्वल टू C प्लस S, ठीक है। सो किसी कंपनी ने सपोज 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, तो क्या तुरंत इनकम हो जाती है? एट रैंडम एकदम से पैसे लगाए और पैसे आ जाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। सो एट फर्स्ट स्टेज मान लो कह सकते हैं कि उसकी कंपनी की इनकम हुई 0, बट स्टाफ को सैलरी तो देनी होती है ना, वो तो देनी ही पड़ेगी। कुछ कंजम्पशन होते हैं जैसे ग्रीस, ऑयल, मशीनरी का पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, तो कुछ कंजम्पशन जरूर होता है। अब इनकम तो 0 है, पैसे हम पूरे इन्वेस्ट कर चुके हैं, तो कंजम्पशन करेंगे कहाँ से? सपोज करिए कि आपका 50 करोड़ का कंजम्पशन है, अब पैसे हैं नहीं, पैसे तो सारे आप इन्वेस्ट कर चुके हो, ठीक है ना। तो कैसे आप इन्वेस्ट मतलब कंजम्पशन कर रहे हो? सेविंग्स में से, सेविंग्स है नहीं, वो तो पैसे इन्वेस्ट कर चुके हो, तो आप क्या कर रहे हो? किसी ना किसी से बोरो कर रहे हो। तो जब भी आप किसी ना किसी से बेटा बोरो करोगे तो सेविंग्स आपकी नेगेटिव हो जाएगी, दैट इज -50। अब यहाँ पे एक सेकंड अजम्पशन आता है। पहला अजम्पशन है कि 2 सेक्टर मॉडल लिया, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से कोई मतलब नहीं है एग्रीगेट डिमांड में। सेकंड अजम्पशन है कि इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हमने कांस्टेंट रखी है,
इन्वेस्टमेंट हमारी इंक्रीज नहीं करेगी। तो सपोज करिए कि आपकी 100 ही इन्वेस्टमेंट है, अब इनकम बढ़ेगी, तो सपोज करिए इनकम 100 से बढ़ी। अब इनकम अगर 100 से बढ़ी तो ऑब्वियस सी बात है, जब पैसे आते हैं तो कंजम्पशन भी बढ़ता है, राइट। हो सकता हो कि कुछ आपको और मशीनरी लेने की जरूरत पड़ जाए या कुछ आपने और सोचा, तो इनकम बढ़ी तो कंजम्पशन भी बढ़ा, राइट। या आपने स्टाफ की सैलरी बढ़ा दी, राइट। तो अब लेकिन कंजम्पशन तो बढ़ेगा, बट सब पूरा पूरा कंजम्पशन कोई भी नहीं करता। वो चाहता है कि लाइक अगर इनकम आपकी 100 से बढ़ी है तो कंजम्पशन को सिर्फ 50 से बढ़ाया जाए, ताकि आगे के लिए भी कुछ हम सेव कर सके। तो आपने सपोज 50 से कंजम्पशन बढ़ाया बेटा, तो आपका कंजम्पशन हो गया 100। अब आप 100 रुपीज अर्न कर रहे हो, 100 करोड़, और 100 कंज्यूम कर रहे हो, तो सेविंग्स कितनी हो गई? 0। इसी तरीके से इनकम फिर बढ़ी, कंजम्पशन लेकिन 50 से ही बढ़ेगा, 150 हो गया, ठीक है। सेविंग्स हमारी कितनी होगी? अब देखो सेविंग्स हमारी पॉजिटिव होना स्टार्ट हुई, फिर ये 300 हो गया, ये सपोज 400 हो गया, एक और ले लेते हैं 500 हो गया, राइट। तो हमारा कंजम्पशन 50-50 से बढ़ रहा है, तो 150 से 200 हो गया, देन 250, देन 300। तो 300 माइनस 200 कंजम्पशन, तो कितना सेविंग्स आई? 100। देन 400 माइनस 250 इज 150, एंड देन 500 माइनस 300 इज 200। अब आपको शेड्यूल लर्न नहीं करना है, आपको ये समझ में आ गया कि इन्वेस्टमेंट हमारा इस तरीके से है, इनकम 100 से बढ़ रही है, कंजम्पशन 50-50 से बढ़ रहा है, और सेविंग भी हमारी 50-50 से इंक्रीज हो रही है। बट पहली सेविंग जो होती है वो नेगेटिव होती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे कंज्यूम करने के लिए, हमने कहीं ना कहीं से बोरो किया था। तो ऐसी सेविंग्स को बेटा डिस सेविंग भी कहते हैं, जब नेगेटिव सेविंग्स होती है, और ये तभी होती है जब आपकी इनकम 0 है और फिर भी आप कंजम्पशन कर रहे हो, तो दैट लीड्स टू डिस सेविंग। एडी का फॉर्मूला क्या है? C प्लस आई, दैट इज कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो 50 प्लस 0, सॉरी 50 प्लस 100, तो ये आपका 150 हो गया। देन 100 प्लस 100, ये आपका 200 हो गया। फिर 150 प्लस 100, तो ये आपका हो गया 250। देन 200 प्लस 100 300, देन 250 प्लस 100 कितना हुआ? 350, एंड देन 300 प्लस 100 400। तो ये एडी आ गया। एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला क्या? कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। तो 50 माइनस 50 0, 100 प्लस 0 100। इसी तरीके से बेटा 150 प्लस 50 200, फिर आपका आएगा 200 प्लस 100 300, 250 प्लस 150 400, एंड देन 500। अगर आपको नहीं भी डायरेक्टली लिखना होता तो भी आप लिख सकते थे। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि इनकम का फॉर्मूला भी कंजम्पशन प्लस सेविंग ही होता है। तो जो इनकम आएगी वही आपकी एग्रीगेट सप्लाई आएगी। ऑब्वियस बात है, जितना मार्केट में सप्लाई करोगे स्टॉक, उतने ही तो पैसे इनकम होंगे। तो आपकी एग्रीगेट सप्लाई इनकम की क्या होती है? इक्वल होती है। इतनी बात समझ में आ गई? अब इसका डायग्राम बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर रहा हूं, इसका डायग्राम बनाते हैं। आपको बस 3 चीजें याद रखनी है डायग्राम प्लॉट करने के लिए बेटा। 0 पे एडी कितना है? 150 और 0 एग्रीगेट सप्लाई। 500 पे एडी कितना है? 400, और एग्रीगेट सप्लाई कितनी है? 500। इतना याद रखना है, ठीक है। तो अब हम डायग्राम देखते हैं। तो आपने ये डायग्राम की लाइन खींची, आप स्केल से भी ड्रॉ कर सकते हैं, चाहे तो मैं स्केल से ड्रॉ करके दिखा देता हूं आपको, ठीक है। एक मिनट रुकिए। ठीक है, तो अब इसको हम प्लॉट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा 1.5 सेंटीमीटर का चाहे तो आप गैप ले सकते हैं, ठीक है, डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। ये हमारी एक्स एक्सिस है जहाँ पे हम इनकम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो 0, 100, 200, 300, 400, 500, और एक हमेशा एक्स्ट्रा लेके चलिएगा 600, ठीक है। फिर यहाँ ड्रॉ करेंगे
यहाँ पे आप 2 लाइंस का कॉपी के हिसाब से डायग्राम बनाने के लिए बोर्ड में यूज़ कर सकते हैं। तो 0, 100, 200, 300, 400 एंड 500। जैसा कि मैंने कहा कि एक हम लोग एक्स्ट्रा लेंगे 600। तो ये आपका एडी और एएस अप्रोच हो गई। यहाँ पे आप एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई शो करेंगे, ठीक है। ये आपकी वाई एक्सिस होगी। अभी क्या था, हमने आपको बताया था, देखो अगर आप पिछला शेड्यूल देखोगे तो 0 पे 150 था एग्रीगेट डिमांड। तो 0 इनकम पे हमारा एग्रीगेट डिमांड सपोज यहाँ पे 150 हो गया, ठीक है। ये हम थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, ठीक। उसके बाद आपका एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड 500 पे कितना था, 400, राइट। सो 500 पे हम लोग 400, तो दिस इज योर 500 की इनकम और 400 एग्रीगेट डिमांड रहेगा। तो सपोज करिए यहाँ पे आपका डायग्राम ये आएगा, ये पॉइंट आपका रहेगा, ठीक है। तो ये आप इसको ज्वाइन कर लेंगे, ये आपका एग्रीगेट डिमांड हो गया। इज इट क्लियर? स्केल से ड्रॉ करिएगा तो सही आएगा। और फिर आपका एग्रीगेट सप्लाई की बात करते हैं, ठीक है। तो वो 0 पे 0 थी इनकम, 0 थी, तो एग्रीगेट सप्लाई भी 0 थी, तो हमने 0 पे 0 मार्क कर लिया। फिर 500 पे एग्रीगेट सप्लाई हमारी कितनी थी, वो 500 थी वो भी, ठीक। तो ये आपका एग्रीगेट सप्लाई के 2 पॉइंट्स हो गए, इसको ज्वाइन कर लेंगे। तो जहां पे भी बेटा एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड इंटरसेक्ट करेंगे, यही हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होगा। तो ये आपका 300 पे आ रहा है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे डायग्राम शो करेगा। तो दिस इज योर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो जहां पे भी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होगा वो हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हो गया है, ठीक। अब जब ये सिचुएशन है कि एग्रीगेट सप्लाई यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड से ज्यादा है, तब क्या करेंगे। तो जब भी एग्रीगेट डिमांड से एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा होगी, तो प्रोड्यूसर ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, उतनी डिमांड है नहीं, उसका इन्वेस्टमेंट फालतू में मतलब स्टॉक हो रहा है ना, फालतू में पैसे बच रहे हैं। तो वो क्या करेगा, अपनी इन्वेंट्री को रिड्यूस करने की कोशिश करेगा। वो इतना पैसा प्रोड्यूस, मतलब इतना इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा और कम स्टॉक प्रोड्यूस करेगा। और अगर इक्विलिब्रियम से पहले की बात करें तो यहाँ पे डिमांड ज्यादा है, तो जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी तो प्रोड्यूसर और इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि डिमांड है, उसके पास स्टॉक की कमी पड़ रही है, ठीक है ना। तो ये आपका फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम था थ्रू एडी एंड एएस अप्रोच। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आ जाते हैं। ये आपका एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के अकॉर्डिंग फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम था, जहां पे भी एडी और एएस इक्वल होंगे। शेड्यूल हमने बता दिया आपको, ठीक है, डायग्राम भी बता दिया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। तो व्हाट इज सेविंग, पहले तो ये समझ लेते हैं। सेविंग इज दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट कंज्यूम्ड, मतलब जो भी पैसा हम लोग खर्च नहीं करते हैं, स्पेंड नहीं करते हैं, उसे हम सेविंग्स कहते हैं। फिर बात करते हैं इन्वेस्टमेंट अप्रोच की। सो इन्वेस्टमेंट क्या है, इंक्रीज इन दी फ्रेश कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी। हम जब किसी एसेट में इन्वेस्ट करते हैं जिससे हमारी एसेट क्रिएट हो, जिससे और जो आगे जाके हमें इनकम जनरेट करके दे सके, वो हमारा इन्वेस्टमेंट कहलाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एडी का फॉर्मूला सी प्लस आई था, हमने एडी का फॉर्मूला सी प्लस आई लिया और वाई को सी प्लस आई के इक्वल कर दिया, ठीक है। फिर एएस का फॉर्मूला सी प्लस एस था। अब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई को इक्वल करा था, ऐसे ही हम लोग सी प्लस आई और सी प्लस एस को इक्वल कर देंगे। यहाँ पे बेटा सी सी कैंसिल हो जाएगा, तो इन्वेस्टमेंट किसके बराबर आ जाएगा, सेविंग के। तो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कब होगा, जब सेविंग भी हमारी इन्वेस्टमेंट के इक्वल होगी, ठीक है। तो उसी डायग्राम में जब आप देखेंगे, मैं आपको फिर से बना के दिखा देता हूं, एक मिनट रुकिएगा। यहां पे आपको शॉर्ट में बना के दिखा देता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको शॉर्ट में बना के दिखा देते फिर से डायग्राम कि इनकम, इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन एंड सेविंग। तो इनकम हमारी कितनी थी, 0, 100, 200, 300, 400, 500। इन्वेस्टमेंट तो हमारा कांस्टेंट था 100 पे, राइट, ये हमारा कांस्टेंट था बेटा। फिर हम कंजम्पशन की बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द कंजम्पशन। वो 50-50 से इंक्रीज हो रहा था, तो 50, 100, 150, 200, 250 एंड 300। सेविंग्स की बात करते हैं, -50, 0, 100, 200, 150 सॉरी। और ऐसे ही आपको भी लर्न हो जाएगा, आप 2-3 बार डायग्राम और शेड्यूल प्रैक्टिस करिएगा तो आपको भी लर्न हो जाएगा, 200 एंड 250। सो जहां पे भी हमारा सेविंग और इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा, इक्वल होगा सॉरी,
तो वो आपका फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हो जाएगा, जहां पे भी हमारा सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल होगा। तो कहां पे इक्वल हो रहा है, यहाँ पे 50 आया, ये 100 आया, फिर 150 आया और फिर 200 आया। तो ये देखिए आप इन्वेस्टमेंट और सेविंग यहाँ इक्वल हो रहा है, तो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम यहाँ पे भी किस पे होगा, 300 पर। जब आपकी नेशनल इनकम कितनी होगी 300, तो वहां पे भी इक्वल होगा। कैसे प्लॉट करेंगे, यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा नीचे लेके जाना पड़ेगा क्योंकि सेविंग्स आपकी नेगेटिव से है, तो ये आपका -100 हो गया। तो 0 पे सेविंग्स कितनी है बेटा, -50, ये आ गया। और 500 पे सेविंग्स कितनी है, 200, राइट। सो 500 पे सेविंग्स हमारी हो गई 200, तो ये आपका सेविंग्स बन जाएगी, ठीक। और 100 पे आपका इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है, ठीक है, तो ये आपका इन्वेस्टमेंट हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन आएगी। तो जहां पे भी बेटा सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट इक्वल होंगे, ये हमारा इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। इसको हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट को इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी सेविंग्स। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ दी सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। बस आपको चेंज क्या करना है, एक्स एक्सिस पे आपको यहाँ पे इनकम ही दिखा रहे हैं हम लोग, डिस्पोजेबल इनकम या नेशनल इनकम यू कैन से, एंड यहाँ पे हम लोग एडी एंड एएस अप्रोच नहीं है। अब ये क्या है हमारा सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच है, तो यहाँ पे क्या दिखाएंगे, सेविंग और इन्वेस्टमेंट। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो जहाँ पे भी सेविंग इन्वेस्टमेंट इक्वल होंगे, वहां पे आपका फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होगा। डेरिवेशन मैंने आपको समझा दी, शेड्यूल बता दिया, शेड्यूल 1 लर्न कर लीजिएगा, सब आ जाएंगे आपको। यू मे वॉच द वीडियो अगेन टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। दिस इज ऑल अबाउट वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। थैंक यू, आई होप यू लाइक द वीडियो।